Very good morning, 10th class. How are you all? I hope you are going through your lessons regularly. Coming to yesterday's lesson, just a recap. We were doing the revolution of the liberals 1848, and in this we have read that on one side the peasants, the workers, the weavers of Cilicia, like they were revolting against the bad economic condition, unemployment, poverty. On the other hand, the liberal minded people, the educated middle classes, were also planning to revolt against monarchy. They wanted to remove the monarchical rule and wanted to establish democracy along with nation states. तो एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात हो रही थी, एंड ऑन द अदर हैंड दे वर ट्राइंग फॉर नेशनल यूनिफिकेशन. और इसका सबसे पहला एग्जाम्पल हमने पढ़ा था अबाउट जर्मनी. फर्स्ट अटेम्प्ट टू यूनिफाई Germany, that was done in Frankfurt, in the city of Frankfurt, where the representative of educated middle classes, businessmen, commercial classes, they collected together and called Frankfurt Parliament. They tried to make a constitution for Germany. They tried to do the unification of Germany and decided to have a constitutional monarchy. They offered the crown to the king of Prussia, but he refused. And in the end, along with other monarchs, the army was against this parliament, the aristocracy was against this parliament, the worker class was against, so it failed. So it was that first attempt to unify Germany failed. But the process had started. And when all this was going on, the thing that we are going to study today, the topic is about giving rights to women, especially political rights. हमने पढ़ा था when France was declared republic, there also the right to vote was given to only males, है ना. यूनिवर्सल मेल सफरेज, ये वर्ड हमने पढ़ा था. दैट मीन्स दैट राइट टू वोट वॉज नॉट गिवन टू women, not after French Revolution and not after the further revolutions. कितने भी changes आए forms of government में, but the right to vote was not given to women. So let's see what women did, how they struggled a lot to get this right. The issue of extending political rights, and especially कौन सा है political right? Right to vote to women was a controversial one within the liberal movement. See, from the time French Revolution had started, in that time also we have studied that right to vote was given to only active citizens. Though women actively participated in the movement, but still they were denied right to vote. So during the time of revolutionary government in France also, the women have struggled a lot. But even after so many struggles, they were continuously denied right to vote. उन्हें अभी नहीं मिला है, in which large number of women had participated actively over the years. And from 1789 till other revolutions also, other revolts also, 2-3 बार हो चुका है फ्रांस में. Every time women actively participated, but still they are not given right to vote. Women had formed their own political associations. उन्होंने अपने खुद के ग्रुप्स बना रखे थे. They have founded newspapers where they wrote quite actively about giving various rights to women. ये वो न्यूज़पेपर्स थे जिनमें women ही लिखते थे, राइटर्स होते थे, editors भी women हैं, taken out by women. They were fighting for women rights and taken part in political meetings and demonstrations. जितनी बार भी revolutions हुए, सब में women ने actively participate किया. उन्होंने न्यूज़पेपर्स निकाले,
अपने एसोसिएशंस बनाए, एंड कंटिन्यूसली दे वर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स. But even after so many struggles, so many demonstrations, they were continuously denied right to vote in any time of the elections that were conducted for the assembly. Women are not given right to vote, though they were struggling continuously. And even when the Frankfurt Parliament was called in the Church of St. Paul, you can see the picture that is given in your book. That is the Frankfurt Parliament in the Church of St. Paul. देखो नीचे हॉल में मीटिंग हो रही है. These are those 831 representatives who had come from middle classes, from commercial classes. They are all male. ये जितने भी 831 representatives हैं, they are all male representatives. इसमें women नहीं है. And there women were only allowed as spectators. और उसी पिक्चर को ध्यान से देखो, ऊपर गैलरीज दिखा रही हैं, और उन गैलरीज में विमेन वर अलाउड एज ऑडियंस. उन्हें पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करना अलाउ नहीं था. दे वर नॉट एज रिप्रेजेंटेटिव्स देयर, दे वर ओनली अलाउड एज ऑडियंस. विमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी. यहाँ भी विमेन को प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया, अपनी बात नहीं कहने दी गई. एंड ऑफ कोर्स वोटिंग तो बहुत दूर की बात है. उन्हें अगर इस पार्लियामेंट में अलाउ किया गया था तो दैट वाज ओनली एज ऑब्जर्वर, देखो क्या चल रहा है, बट यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग. तो उन्हें सिर्फ एज अ ऑडियंस अलाउ किया गया था. तो देखो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ एंड दिस वाज द ईयर ऑफ 1848. तो बहुत टाइम हो चुका है, बहुत बार चेंजेस हो चुके हैं. डेमोक्रेसी भी है, ये मोनार्की भी आई है. फ्रांस में तो कंटिन्यूसली हर थोड़े ईयर्स में चेंज हो रहे हैं ना, बट स्टिल सारे चेंजेस हो रहे हैं. लेकिन एक बात चेंज नहीं हुई है, गिविंग पॉलिटिकल राइट टू विमेन, राइट टू वोट टू विमेन, वो अभी तक उन्हें नहीं मिला है. Though conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848. ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, इट वाज अ लिबरल मूवमेंट. एक तरीका था ना भाई जर्मन स्पीकिंग एरियाज़ को एम्पायर से फ्री करके और एक अलग जर्मन कंट्री बनाने का. दो इट फेल्ड, मोनार्की ने अपने ट्रूप्स भेजकर उनको भगा दिया था. तो ये जो पहला अटेम्प्ट था टू ब्रिंग लिबरलाइजेशन, टू ब्रिंग डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ये फेल हो गया. दे कुड नॉट रेस्टोर द ओल्ड ऑर्डर. ठीक है, कंजर्वेटिव्स ने दबा तो दिया इस मूवमेंट को, लेकिन फिर वो पुराना सेटअप अब वापस से नहीं ला पाए. एंड व्हाट वाज दैट ओल्ड सेटअप? दैट एब्सोल्यूट मोनार्की. वो उसे वापस अब नहीं सेट कर पाए. मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज, अब जितने भी किंग्स थे यूरोप में, अलग अलग एम्पायर्स के, अलग अलग एरियाज़ के, ठीक है, उन्होंने अपने कंट्री के लिबरल मूवमेंट्स को दबा दिया था, डेमोक्रेसी नहीं आने दी. लेकिन एक चीज़ उन्हें रियलाइज़ हो गई थी. मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिप्रेशन could only be ended by granting concession to the liberal nationalist revolutionaries. किंग्स को एक बात तो रियलाइज़ हो गई थी कि ये जो रेवोल्यूशन और इसका वापस रेवोल्यूशन, रिप्रेशन, 1789 में रेवोल्यूशन हुआ, फिर वापस मोनार्की आ गई, फिर रेवोल्यूशन हुआ, फिर मोनार्की आ गई, फिर रेवोल्यूशन. तो ये जो प्रोसेस चल रहा है कि मोनार्की सेट की जाती है, एब्सोल्यूट मोनार्की, कंजर्वेटिव रेजाइम्स के बारे में हमने पढ़ा था, फिर लोग उसके खिलाफ रिवोल्ट करते हैं, थोड़े टाइम तक वो रहता है, फिर मोनार्की सेट हो जाती है. तो ये जो प्रोसेस चल रहा है पिछले कुछ सालों से, तो अगर इसे ख़त्म करना है ना, ये रेवोल्यूशन और रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशंस टू द लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज. कुछ बातें तो अब रेवोल्यूशनरीज की माननी ही पड़ेंगी. अगर इस साइकिल को ख़त्म करना है तो अब इसे मानना ही पड़ेगा. जो लिबरल माइंडेड पीपल हैं, जो ये एजुकेटेड मिडिल क्लासेस चेंजेस डिमांड कर रहे हैं,
अब इसे मानना पड़े, कुछ तो इनकी डिमांड्स को मानना पड़ेगा. Hence, in the years after 1848, very important year 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe, तो जितने भी किंग्स थे who were ruling over Central and Eastern Europe began to introduce the changes. अब उन्होंने वो changes introduce करने शुरू कर दिए that had already taken place in Western Europe before 1815. क्या हुआ था before 1815? Who was ruling before 1815? नेपोलियन. और नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लागू किए थे वो हमने पढ़े हैं पहले, है ना. बहुत सारे चेंजेस वेस्टर्न यूरोप में जो चेंजेस आए थे, हु ब्रॉट दैट चेंजेस? दे वर ब्रॉट बाय नेपोलियन. तो अब जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के किंग्स हैं, ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स हैं, उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि नाउ वे कैन नॉट रूल इन एन ऑटोक्रेटिक मैनर. हम तानाशाही तरीके से अब रूल नहीं कर सकते, अब समय बदल रहा है. सो दे ऑल्सो स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग ऑल दोज रिफॉर्म्स विच वर इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन बिफोर 1815. और इसी लेसन में हमने पढ़े हैं बहुत सारे बहुत अच्छे चेंजेस थे. दे वर वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स विच वर इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन. तो अब वो ही सारे चेंजेस धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. तो क्या हुआ देखो, सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर अबॉलिश्ड. सर्फडम स्लेवरी, बॉन्डेड लेबर बंधुआ मजदूरी, जो ये दो सिस्टम थे बहुत पॉपुलर थे यूरोप में, इन्हें ख़त्म कर दिया गया. बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनियन, वो पूरी हैब्सबर्ग एम्पायर, वहाँ पर ये दोनों सिस्टम अभी भी थे, स्लेवरी सिस्टम, गुलाम रखने की प्रथा, और बॉन्डेड लेबर, ये दोनों सिस्टम ख़त्म हुए. एंड ऑल्सो इन रशिया, रशिया में भी ये सिस्टम ख़त्म हुआ. ये सब 1848 के बाद हुआ. द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867. और जो हैब्सबर्ग रूलर्स थे उन्होंने हंगेरियंस, हंगरी इज़ अ कंट्री विच वॉज अ पार्ट ऑफ हैब्सबर्ग एम्पायर, उसको और फ्रीडम दी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमी? मोर फ्रीडम वॉज गिवन बाय द हैब्सबर्ग रूलर टू द Hungarians. So these were the various changes that were introduced. तो अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है यूरोप में. वो एम्पायर्स पर जो ऑटोक्रेटिक किंग्स रूल कर रहे हैं, उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि अब समय बदल रहा है, टाइम्स आर चेंजिंग, द थॉट्स, द थिंकिंग ऑफ पीपल इज़ ऑल्सो चेंजिंग. अब हम वो ऑटोक्रेटिकली रूल नहीं कर सकते. इफ़ वी वॉन्ट टू रूल, we have to fulfill some of the wishes of the people. हमें उन्हें कुछ फ्रीडम देनी पड़ेगी. और वही हुआ, सर्फडम ख़त्म हुआ, बॉन्डेड लेबर ख़त्म हुआ, एंड इवन द पीपल ऑफ हंगरी दे वर गिवन सम ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम, खुद के डिसीजन लेने की आज़ादी. हाँ, कंट्री या पॉलिटिकल सिस्टम में अगर हम ऑटोनॉमी बोलें तो इसको स्वायत्तता कहते हैं, जिसका मतलब अपने डिसीजन लेने की आज़ादी हैब्सबर्ग एम्पायर ने भी हंगेरियंस को दी. सो दीज वर द चेंजेस विच वर टेकिंग प्लेस इन यूरोप. और यहाँ हमने देखा दो फर्स्ट अटेम्प्ट टू यूनिफाई जर्मनी फेल्ड. लेकिन अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हाउ जर्मनी वॉज यूनिफाइड. पहली कोशिश बेकार हो गई, लेकिन इससे डरे नहीं, रुके नहीं जर्मन्स. दे अगेन ट्राइड. एंड हाउ डिड दे यूनिफाई जर्मनी? और कैसे वर्ल्ड में एक न्यू कंट्री सामने आया, क्योंकि अभी तक जर्मनी नहीं है. कैसे न्यू कंट्री सामने आया? हु मेड दिस कंट्री? व्हाट वर वेरियस स्टेजेस? क्योंकि हमें जर्मन यूनिफिकेशन की स्टेजेस पढ़ेंगे हम. दैट विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन कीप रीडिंग.